सभी लोग सीधे बैठना है. You have to sit straight. Your back should be straight. You have to concentrate here in the middle of the forehead just for 2 minutes. But where you have to concentrate and what you have to concentrate, you might have seen the star in the sky, smallest star in the sky. Concentrate in the middle of the forehead and just imagine a star in the sky. There will be many thoughts coming into your mind. Don't run behind those thoughts. Only concentrate at the middle of the forehead. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो. पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है. जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है. How did you feel for 2 minutes? If there are many thoughts are coming into your mind when you are meditating, if there are less thoughts coming into your mind, then your mind is healthy. So today's topic is science versus silence. What is the basic difference between science and silence? That we will understand first. The science, we can call it as a modern science. Modern science has been discovered and invented by human beings. We call them as a scientist. And on the other hand, the power of silence, that is not invented or that is not given to this world by the human being. Only Supreme Teacher, you can say as a God, Paramatma, Khuda, only that supreme power can give the power of silence. So science is given by the modern science is given by the human beings, and power of silence is connected with the spiritualism. It is connected with the spiritualism. What is spiritualism? In Hindi we call it as Adhyatma. What is the meaning of Adhyatma? Do you know? There are 2 words, Adi and Atma. Adi means inside, and the second word is Atma. Atma means soul, spirit. It is also called as the Prana Shakti. It is also called as energy. Body is made up of 5 elements: Jala, Vayu, Agni, Prithvi, Akash. So it is dead, unconscious, because all the 5 elements are unconscious. When the energy enters into the body, it becomes alive. That energy is called as soul, spirit.
We have the knowledge of science and technology. I just switch on the fan and within seconds the fan started. It started giving the air. It started rotating. Why it is rotating? Because you told me that electricity current is flowing. Electrical energy has been converted into which energy? Mechanical energy. Am I right? Electrical energy has been converted into mechanical energy. But have you seen the electric current by your open eyes? Have you seen? No. But still, you know that it is existing, and on that basis, you know that this fan is working. In the similar manner, when I am looking by my eyes, when I am speaking by my mouth, when I am doing all the actions through my organs, there is some energy. Because of that energy, I am able to perform all the functions of the body. So body is just like an instrument. This is also an instrument. If there is no electricity current, then this mic will not give you sound. In the similar manner, अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर जो है ये कुछ भी काम का नहीं है. आत्मा की वजह से हम शरीर से फंक्शन कर सकते हैं. So spiritualism, the basis of spiritualism is soul, and the soul is conscious. It is alive, and the matter is dead. So all the scientific investigations and scientific inventions and discoveries, what they have done the research in the matter, and the matter is made up of atoms and molecules. Matter is made up of atoms and molecules, and matter is dead, unconscious. But on the other hand, the sages in India, they have done research in soul and supreme soul. आत्मा और परमात्मा में रिसर्च किया भारत के ऋषि मुनियों ने. So they are studying on consciousness, and what the modern scientists, the Western philosophers and scientists, they are studying the dead matter. They are studying the atoms and molecules. They are doing research in that. So that is the main difference between science and silence. So silence is based on the spiritualism, and only God can teach spiritualism. In Srimad Bhagavad Gita, there is one verse. Adhyatma Vidya Vidyanam. ये अध्यात्म विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है. This is the best knowledge. हम सोचते हैं इंजीनियरिंग बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है, लेकिन इन सभी विद्याओं में जो सबसे हाईएस्ट नॉलेज है, दैट नॉलेज इज अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म. क्यों? क्योंकि ये जीवन जीने की कला सिखाती है. इट गिव्स अस विजडम. अभी हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उससे हमें नॉलेज मिलेगा, लेकिन विजडम नहीं मिलेगा, विजडम प्राप्त नहीं होगा. सो स्पिरिचुअलिज्म गिव्स अस विजडम. नाउ by doing the scientific investigation, what we have achieved, there are many scientific investigations in the world. There is a robotics technology, there is a internet technology, there is a artificial intelligence also. So by sitting in Hyderabad, I can talk to my mother who is sitting at USA, America. I can talk, there is a video calling, I can do that. But sometimes the network of the mobile fails. I cannot do video calling, I cannot do simple WhatsApp calling also. But at that time, if my mother remembers me sitting in America and I am in Hyderabad, she remembers me, and what happens?
that my mother is remembering me. How this happens? Is this because of the power of silence or because of the power of science? साइलेंस की पावर काम कर रही है या साइंस की पावर काम कर रही है? साइलेंस. So when the equipments and the means of the science those get failed, at that time the silence power works. Now what happened? Within these 100 and 200 years, we are focused more on the instruments of the science. ये जो साइंस के गैजेट्स है, आज इस गैजेट्स में हम सारे के सारे एडिक्टेड हैं. There is an addiction. मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे एडिक्शंस हो गए पूरी तरीके से. एंड ड्यू टू दैट हमारा जो माइंड है ये फोकस हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है? क्या हो रहा है? ज्यादा कंट्रोल्ड माइंड हो रहा है, ज्यादा फोकस हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है? क्या हो रहा है? माइंड में ये साइंस के साधन यूज करने से हमारे अंदर ज्यादा नेगेटिविटी, ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे या पॉजिटिव थॉट्स आ रहे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? पॉजिटिव, नेगेटिव? ओके, so he said that more negative thoughts coming within a day. If you make an analysis of your mind, if you create a map at 7 o'clock in the morning, what type of thoughts were there? Were those thoughts positive and they were good thoughts, or they were best thoughts or negative thoughts? Then 8 to 9, what type of thoughts were there? 9 to 10, what type of thoughts were there? So, in full day, if we observe, if we do the analysis, we will come to know that there is more percentage of waste thoughts and negative thoughts coming into our mind. And because of that, we are facing the problems of the depression, tension, stress, anxiety, insomnia. We are addicted to the gadgets of the science. Now the mind is not stable. छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन अस्थिर हो चुका है पूरी तरीके से. अनस्टेबल माइंड है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें साइलेंस की पावर भी चाहिए. We have to make the balance. I am not saying you that कि आप साइंस के जितने भी साधन है उसको छोड़ दीजिए. We can do the positive use of the means of the science also. How we can do the positive use? When your mind will be concentrated, it will be controlled completely, and it is going into the right path and right direction. Then only you can get the good results by the gadgets of the science. Now what? We don't know what is spiritualism. We don't know what is right path. And because of that, we are misusing the means of the science, the equipments of the science and the gadgets of the science. So, the power of science, what it does, we can see the people which are very at the farther distance, we can see them, they are very close to us. We can achieve that because of the means of the science. In the similar manner, if our mind is clean, there is a detoxification of the mind, there is a detoxification of the soul. There are no negative thoughts, there are no waste thoughts. If our vibrations are the pure, then what will happen? The person who is sitting in America, our vibrations, waves of the vibrations will travel across the oceans and he will get the touchings. So that can happen by the silence. This is the power of the silence. But now we have forgot that. हमको पता ही नहीं है, हमको सिर्फ साइंस की पावर पता है. There is one scientist, Masaru Emoto. That scientist, Japanese scientist, has done one experiment. He has taken the two glasses. He has taken the water in those two glasses. He kept one glass in one room
and another glass in another room. What he has done, he has passed the loveful messages. Before that, one glass of water, and before that another glass of water. He has passed the negative messages, hateful messages. After some time, what he has done, he kept those glasses in refrigerator. After some time, he has taken from the refrigerator and he has done the microscopic examination, observation of those water particles. He came to know that the water particles in the glass in front of which he has passed the loveful messages, they are in symmetrical structure. They are like a diamond structure. And another glass of water, the water particles are in the collapsed and distorted structure. Why this happened? Because there is a power in the words and the water particles also carry memory. अगर हम किसी को गालियां दे रहे तो उसका एक इफेक्ट हो रहा है उस व्यक्ति के ऊपर. बिकॉज द बॉडी आल्सो कैरीज 70% ऑफ वाटर. वाटर पार्टिकल्स आल्सो कैरीज मेमोरी. अगर हम किसी के बारे में अच्छे शब्द बोल रहे हैं तो उस केस में उसके ऊपर पॉजिटिव असर हो रहा है. इवन वाटर पार्टिकल्स आर कैरिंग मेमोरी और उसकी वजह से अगर हम किसी को गालियां दे रहे हैं, एब्यूजिव वर्ड्स बोल रहे हैं तो उसकी वजह से अलग अलग डिसीजेस भी हो सकते हैं. अगर वाचा का स्पीच का इतना असर हो रहा है तो स्पीच से भी सूक्ष्म क्या है? व्हाट इज सटलर देन द स्पीच? वाचा से भी सूक्ष्म शक्ति, पावर कौन सी है? किसी को पता है? द थॉट्स कमिंग इनटू द माइंड, दोस आर सटलर देन द स्पीच. हमने किसी को गाली दे दिया, किसी का इंसल्ट कर दिया, उसका जो इफेक्ट उसके ऊपर होने वाला है उससे ज्यादा इफेक्ट हमने अगर मन से किसी को बद्दुआएं दी, we are giving the bad thoughts to that person, तो उसका ज्यादा असर होगा, ज्यादा इफेक्ट होगा उस पर्सन के ऊपर. So the power of the thoughts is most powerful than the speech also. Speech is silver and the thoughts in the mind, those are gold. तो साइलेंस की पावर जो है उसका कनेक्शन हमारे माइंड के थॉट्स से है. अगर हमारे माइंड के थॉट्स पॉजिटिव बन जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे तो हमारे अंदर पावर, साइलेंस की पावर आएगी. अगर हमारे थॉट्स निगेटिव बन जाएंगे तो हमारे अंदर की साइलेंस की पावर कम हो जाएगी. सो आपने देखा होगा कि वाइब्रेशंस की जो पावर है वो जानवर के ऊपर भी असर करती है. There are two dogs are there. One dog is living in jungle and the another dog is living in home where the human being is residing. एक पालतू कुत्ता है और एक जंगली कुत्ता है. कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है. जंगल का कुत्ता बीमार नहीं पड़ता है. और पालतू कुत्ते के लिए आप डॉक्टर भी बुलाते हैं आजकल घर पे. The reason is that dog comes into the vibration of the human being. और human being, उसका जो घर का मालिक है, घर के लोग हैं, वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उसका असर उस जानवर के ऊपर भी होता है, जंगल के कुत्ते के ऊपर नहीं होता है. तो मनुष्य जो है, the human being is most intellectual animal on this planet. अगर मनुष्य के वाइब्रेशंस खराब हो गए, अगर मनुष्य के वाइब्रेशंस इम्प्योर हो गए तो उसका असर जानवर के ऊपर, उसका असर प्लांट्स के ऊपर, उसका असर नेचर के ऊपर हो जाएगा. सभी के ऊपर मनुष्य के वाइब्रेशंस का असर होता है. तो मनुष्य के वाइब्रेशंस कैसे सुधरेंगे? हाउ वी कैन इंप्रूव द वाइब्रेशंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग? किस तरीके से सुधरे जाएंगे वाइब्रेशंस? हाउ वी कैन प्यूरिफाई द वाइब्रेशंस? पता है क्या उसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन लाइज इन द स्पिरिचुअलिज्म. सॉल्यूशन लाइज इन द स्पिरिचुअलिज्म. जब हमें ये रियलाइज होगा हु एम आई,
who am I? What is my real identity? What is my self? Who am I? जब इस पहेली का हमको जवाब मिलेगा, when we solve this riddle, then we will get to know that कि हमारे जो वाइब्रेशन से हमारे जो मन के संकल्प है वो प्यूरिफाई हो सकते हैं। तो मेरी असली आइडेंटिटी क्या है? मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में हम कैसे समझेंगे? और वो आइडेंटिटी जो है, वो आइडेंटिटी ये जो शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, उससे परे है। एंड दैट आइडेंटिटी इज आई एम अ सोल, पीसफुल सोल। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। आपने निकोला टेस्ला साइंटिस्ट का नाम सुना रहेगा। निकोला टेस्ला ने बोला है, साइलेंस पावर हेल्प द साइंस पावर। All the scientists have gone into depth of the silence when they have done the various investigations and the discoveries. वो साइलेंस में चले गए, वो एकांत में चले गए, एकाग्रता में चले गए मन की। आज हम जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दिए हुए उसको स्टडी करते हैं, लेकिन एक नई थ्योरी इन्वेंट करने के लिए आपको माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है, when I read the Bhagavad Gita and I reflected that how God created this universe. And Albert Einstein said that whatever discoveries and inventions I have made in my life because of the inspiration of Srimad Bhagavad Gita. आप बोलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता किसी धर्म का किताब है। श्रीमद् भगवद गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक। बड़े बड़े साइंटिस्ट है, एटम बॉम्ब किसने इन्वेंट किया पता है आपको? Who has invented atom bomb? And where it was invented? Do you know? Oppenheimer, Robert Oppenheimer, right answer. So आप गूगल में जाइए या तो यूट्यूब में जाइए, रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम डालिए और उसमें एक 1945 का वीडियो आपको दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। उस वीडियो में जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1945 में, ट्रिनिटी नाम था उसका, तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुख से एक वर्ड आया, कालोस्मी। क्या वर्ड आया? कालोस्मी। कालोस्मी means I am the god of death. This is the wording, this is the श्लोक of Srimad Bhagavad Gita. कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृत्ता। मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ। I am the god of death. तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया, जिन्होंने बहुत इन्वेंशंस लाए, वो सारे के सारे श्रीमद् भगवद गीता को अभ्यासक थे। बिकॉज श्रीमद् भगवद गीता इज अ स्पिरिचुअल बुक। उस स्पिरिचुअल पावर से हमें साइलेंस की पावर मिलती है और उस साइलेंस की पावर से आप बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो साइंस जो आज की मॉडर्न साइंस है, वो साइलेंस की पावर से ही उसका इजाद हुआ है। उसकी वजह से ही आज हम साइंस की पावर को ढूंढ पाए। हैव यू हर्ड अबाउट टेलीपैथी? व्हाट इज टेलीपैथी? पता है टेलीपैथी क्या होता है? Anybody knows what is telepathy? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, माँ का और बेटे का एग्जाम्पल दिया था। It is transmission of thoughts from one mind into another mind. होता है ना कभी कभी हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसी का फोन आ जाता है ना? तो ये टेलीपैथी है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म देखी है क्या आपने? शाहरुख खान को देखा है? शाहरुख खान को, काजोल को देखा है? वो शाहरुख खान को ट्रेन पकड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और शाहरुख खान काजोल को मन में बोलता है पलट जाती है, मन के अंदर बोलता है। सो दिस इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन। ये मन के थॉट्स की पावर है। लेकिन आज हम क्यों भूल गए? बिकॉज आवर माइंड इज नॉट स्टेबल। श्रीमद् भगवद गीता
कैसे एकाग्र करूं? भगवान को यह प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, और अर्जुन को भगवान ने जवाब क्या दिया? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। क्या कर? अभ्यास कर। और दूसरा बताया वैराग्य ला। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, इट इज रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स ऐसे नहीं कि सन्यासी के वस्त्र पहन के जंगल में चले जाओ या किसी आश्रम में चले जाओ। कमल पुष्प समान जीवन, जस्ट लाइक अ फ्लावर ऑफ लोटस। जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है, और कीचड़ में रहने के बावजूद उसकी जो पंखुड़ियां होती है उसमें कीचड़ का स्पर्श नहीं होता है। तो भगवान ने अर्जुन को जवाब दिया अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? योगाभ्यास। व्हाट इज योग? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग मतलब क्या? भगवान ने बोला योग अभ्यास कर, और दूसरा बोला वैराग्य ला, डिटैचमेंट, रिनंसिएशन। योग का मतलब क्या है? पता है किसी को? What is the meaning of योग? Is it yogasan and pranayam? Is this Bharat's ancient Rajyog? रामदेव बाबा, do you know रामदेव बाबा? वो क्या सिखाते हैं? योगासन और प्राणायाम सिखाते हैं। That is हठ योग। जो श्रीमद् भगवद गीता में एंशिएंट राजयोग की बात की है, that is different. Yoga means union. What is the meaning of yoga? It is union. Union of soul with supreme soul. आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसको कहते हैं योग। एक बैटरी है मोबाइल की, वो डिस्चार्ज हो रही है तो हम उसको चार्जिंग को लगाते हैं। कोई छोटी बैटरी है उसको चार्जिंग करनी है तो हम बड़े जनरेटर से उसको कनेक्शन देते हैं। वैसे हमारी आत्मा जो है दैट इज स्मॉल बैटरी एंड इट गोट डिस्चार्ज। आत्मा की बैटरी अभी सभी की डिस्चार्ज है। किसी की 70% डिस्चार्ज है, किसी की 80% है, किसी की 90% है। जिसकी 90% के ऊपर डिस्चार्ज है वो डिप्रेशन का शिकार है, फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का रीजन क्या है? What is the reason? पता है आपको क्या रीजन है आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का? The reason is that we forgot that we are the soul, and what we are remembering that I am the body. So now there is a body consciousness. If there is more body consciousness, then there is a less soul consciousness. जिसका 90% 80% बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गया है, उसकी सोल कॉन्शियसनेस सिर्फ 20% है, 10% है। और बॉडी कॉन्शियसनेस का मेजरमेंट क्या है? व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस? कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा है और इसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस कम है? कैसे पता चलेगा? आत्मा 5 विकारों के अधीन हो जाती है। We are all the souls coming into the cycle of birth and death. एक जन्म लेते, फिर दूसरा जन्म लेते, फिर तीसरा जन्म लेते। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में जब हम जाते हैं तो हमारी आत्मा की जो पावर है वो कंज्यूम होती है। जैसे मोबाइल की बैटरी कंज्यूम होती है तो रोज चार्जिंग करते हैं आप, डेली विदाउट फरेड 2 बार चार्जिंग लगाते हैं। रात को सोते समय भी अगर 12-1 बज गए और आंख भी लग गई तो भी 5 मिनट के बाद उठ के अरे मोबाइल चार्जिंग को नहीं लगाया, सवेरे लफड़ा हो जाएगा। मोबाइल चार्जिंग बहुत जरूरी है। खुद की चार्जिंग से ज्यादा मोबाइल की चार्जिंग जरूरी है। तो ये बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो रहा है आत्मा की? इट गॉट डिस्चार्ज बिकॉज ऑफ 5 वाइसेस, 5 विकार। कौन से 5 विकार है जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है? आपको पता है 5 विकार कौन से होते हैं? किसी को पता है? बॉडी कॉन्शियसनेस 5 वाइसेस की वजह से आती है। 5 विकार कौन से होते हैं? काम, दैट इज कॉल्ड एज लस्ट। काम मीन्स डिजायर। सेकंड वन इज
किसी को पता है? काम, क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ, ग्रीड। चौथा नंबर अटैचमेंट और पांचवा नंबर इगोइज्म। These are the 5 vices. लोग इससे ग्रसित है। Our intellect is covered by these 5 vices और जिसकी वजह से हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो इंटेलेक्ट है और हमारी जो सोल है वो डिग्रेडेड है, हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का मीनिंग क्या बताया मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम? लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। There are many types of desires, but the chief mukhya of all the desires is काम विकार। काम means कामना, कामना means इच्छा। In श्रीमद् भगवद गीता it is said that जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से मोह जन्म लेता है, अटैचमेंट, और मोह से बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। सो जितना भी हमारा डिग्रेडेशन है, जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, जितनी भी समस्या है, उसका कारण क्या है? हम 5 विकारों के अधीन है, हमारे मन और बुद्धि। मन का काम क्या है? मन का काम क्या होता है? सोचना, थिंकिंग पावर। और बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि क्या काम करती है? डिसीजन मेकिंग पावर। तो मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, उसके बाद एक्शन में आता है ना? दिस इज द प्रोसेस। तो मन के संकल्पों को और मन को हम अगर सुधार दे, इफ वी इंप्रूव द थॉट्स ऑफ द माइंड, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें, निगेटिविटी को क्लींसिंग करें, तो हमारा माइंड जो है वो प्यूरिफाई अगर हो जाएगा तो हमारे कर्म जो है वो भी अच्छे कर्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने आपको बताया कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द बैटरी ऑफ द सोल इज गेटिंग डिस्चार्ज? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? 5 विकार। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके आगे दूसरी बात है कि वी फॉरगॉट आवर आइडेंटिटी। आप बोलेंगे कि ठीक है, आत्मा का नॉलेज पता चल गया, लेकिन आत्मा का ध्यान कैसे करें? हाउ टू डू द मेडिटेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द माइंड। आप रेमेडी बताइए हमें। ओके, सो जो आत्मा है इस शरीर में कहां रहती है? वेयर इट इज सिचुएटेड? एनीबॉडी नोस वेयर द सोल इज सिचुएटेड इन द बॉडी? पता है किसी को आत्मा कहां रहती है? शरीर में। शरीर में कहां रहती है? नाक के ऊपर रहती है या यहां रहती है? यहां रहती है। हार्ट में कहां रहती है आत्मा? फोरहेड। इन्होंने जवाब दिया फोरहेड, इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। क्या प्रूफ है? व्हाट इज द प्रूफ? डू यू नो? क्या बेसिस है कि आत्मा यहां रहती है? श्रीमद् भगवद गीता इट इज सेड दैट भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। द सोल इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। ये श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रमाण मिलता है। देयर इज सेकंड प्रूफ दैट इंडियन गर्ल्स व्हाट दे आर पुटिंग हियर, बिंदी, and all the boys and the gents they are putting here tika, tilak. This is the symbol. We have started using this symbol from Dwapar Yuga. There are 4 yugas. Satyug, second one is Treta Yuga, उसके बाद द्वापर युग और चौथा युग कौन सा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग, एक्सट्रीम सिचुएशन। अभी सिर्फ कलयुग नहीं है, कलयुग का अति एक्सट्रीम सिचुएशन चल रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि दुनिया
दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, एट्रोसिटीज, आतंकवाद, वायलेंस, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। अपने आत्मा के अंदर, मन के अंदर भी आतंकवाद और भ्रष्टाचार चल रहा है या नहीं चल रहा है? राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चलती है। पहले हमारे अंदर ही राम बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही रावण बैठा हुआ है या नहीं? रावण मीन्स डेमन, राम मीन्स डिटी, देवता और राक्षस। इसकी युद्ध हमारे आत्मा के अंदर चलती है। इन चैप्टर नंबर 16 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता there are two types of qualities, divine qualities and demonic qualities. If you Google Srimad Bhagavad Gita chapter number 16, there are many verses in chapter number 16. What are the demonic qualities and what are the divine qualities? And if you read all that, you will come to know that we all are demons, because we have more demonic qualities than the divine qualities. तो आत्मा के अंदर डेमोनिक क्वालिटीज बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए हमें सोल कॉन्शियसनेस के तरफ स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहिए। सोल कॉन्शियसनेस बनने के लिए हमें यह पता करना है कि आत्मा यहां पे सिचुएटेड है, इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। अभी मिडल ऑफ द फोरहेड है, लेकिन उसको याद कैसे करें? हाउ टू रिमेंबर द सोल? वी हैव नॉट सीन, इट इज इनविजिबल, इट इज इमॉर्टल, वी हैव नॉट सीन इट। So how to remember that soul? उसका क्या फॉर्म है? It is formless. In Srimad Bhagavad Gita, it is said that Anoraniyam Samanusmaret. It is infinitesimal than the atoms and molecules. आत्मा अति सूक्ष्म है। It is just like a point of light. जैसे आकाश में आपने स्टार देखा है, वैसे आत्मा जो है वो स्टार है। It is just like a point of light. तो आपको spiritual power improve करनी है। If you want to increase the spiritual power, what you have to do? You have to wake up early morning. Early morning का जो समय है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का समय। The timings are 2 o'clock to 4:45. 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। उस समय अगर अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करने का आप अगर अभ्यास करते हैं, 4 बजे उठ जाइए। रात को कितने बजे सोते हो आप? बताइए। 10 बजे सो जाते हो? अरे बहुत जल्दी सो जाते हो। आजकल तो लोग 2 बजे सो जाते हैं और मैं 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है, इसकी बात बता रहा हूं आपको। 2 बजे सोते हैं ना आजकल, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। So you have to wake up at early in the morning. और सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है, उसमें 4 बजे भी आप उठ गए और आधा घंटा आप अगर ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गए। क्या ध्यान करना है आपको? In the middle of the forehead, you have to remember that point of light, just like a star. We have to imagine that. और वो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमक रही है। आपको इसका ध्यान करना है। आधा घंटा, हाफ एन आवर आप रोज कीजिए और 6 मंथ्स करते रहिए, 180 डेज लगातार। रात को सोते समय 15 मिनट कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपका माइंड जो है धीरे धीरे क्लींसिंग हो रही है। क्योंकि जितना आप सूक्ष्म को याद करोगे, उतना आपका माइंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। आज हम किसको याद करते हैं? बताइए, किसको याद करते हैं हम? चाचा, काका, मामा, ताऊ, दोस्त, सहेली, फ्रेंड्स को याद करते हैं ना, टीचर को याद करते हैं। तो हमें सारे लोग याद आते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला 5 मिनट के लिए आप एक पॉइंट ऑफ लाइट को याद कीजिए। आप 5 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे सर माइंड में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। और अगर ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो समझो आप बीमार हो। कैसे बीमार हो? मन से बीमार हो। तो कितने लोग इधर मन से बीमार है? हाथ ऊपर कीजिए। शरीर से बीमार नहीं, मन से बीमार कितने लोग हैं? अरे डरना नहीं है,
से? गुड, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड किसके लिए बोला? आपकी सच्चाई के लिए वेरी गुड बोला मैंने। तो शरीर के डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने वाले डॉक्टर आज दुनिया में है नहीं। आज दुनिया में स्पिरिचुअल पावर कैसे इंप्रूव की जाए उसके डॉक्टर्स है नहीं। आज दुनिया में आत्मा की नॉलेज देने वाले डॉक्टर्स नहीं है। इसीलिए आज बड़े बड़े एक्टर्स, फिलोसोफर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, इंटेलेक्चुअल्स क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। डिप्रेशन आता है तो क्या करते हैं? सुसाइड। और सुसाइड का मीनिंग क्या है? आत्महत्या। क्या है? आत्महत्या। बिकॉज दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ आत्मा, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ सोल, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द आत्महत्या। सो स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाइए। मैं आत्मा स्टार हूं, आई एम जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। कोई विचार आता है तो उसके पीछे भागना नहीं है, उसको डांट लगाओ, तू चला जा यहां से करके। तो ऐसा अभ्यास कीजिए, आप आत्मा का अभ्यास कीजिए। आत्मा इस शरीर का ड्राइवर है और शरीर क्या है? गाड़ी है। जैसे मोटर गाड़ी होती है, कार होती है, कार में ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन एक है या अलग अलग है? ड्राइवर का फूड और गाड़ी का फूड एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। इन सिमिलर मैनर आत्मा का जो फूड है वो आज हमको पता नहीं है। आत्मा का फूड है ये कॉन्सेंट्रेशन। जितना माइंड को आप स्टेबल करेंगे और चंचल मन को आप आत्मा में स्थित करेंगे और आत्मा में स्थित करके आप परमात्मा को योग लगाएंगे, उसको ही बोलते हैं राजयोग। दिस इज स्पिरिचुअलिज्म। योग का असली अर्थ है कनेक्शन। क्या करते हैं? कनेक्शन। बुद्धि का योग, कनेक्शन। किससे योग लगाना है? अगर भाई साहब आपको अगर चोर बनना है तो आप क्या करोगे? चोरी के साथ जो बड़ा चोर होगा एरिया का उससे कंपनी करोगे, संगत करोगे। किसी को बड़ा डकैत बनना है, डेकोइट, वो फूलन देवी के पास जाएगा, मुझे भी सिखाओ कैसे बंदूक चलानी है। तो जैसा संग करेंगे वैसे संस्कार हमारे आत्मा के अंदर आते हैं। वैसे ही अगर हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज लानी है तो हमें हाईएस्ट कॉन्शियस जो पावर है, परमात्मा, जिसको गॉड, जिसको अल्लाह, जिसको अलग अलग नामों से बोला है, उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा हमें, बुद्धि का कनेक्शन। तो उससे फायदा क्या होगा बताइए? अगर उससे कनेक्शन जोड़ा तो फायदा क्या होगा? उससे हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा। हमारे जो 5 विकार है, क्या नाम बताया मैंने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार हमारे कम हो जाएंगे। 5 विकार ज्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से आज हम कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियसनेस में, और उसकी वजह से हम दुखी है। हमारे दुखी होने का मूल कारण क्या है? What is the root cause of our miseries? बताइए। दुखी होने का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। हम बोलते हैं कि अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ वैसा किया। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। हमारा खुद का माइंड कंट्रोल में नहीं है, हमारा खुद का माइंड शांत नहीं है और हम दूसरों को दोष देते हैं। इसकी वजह से ऐसा हो गया। मैं पास होने वाला था, वो कॉपी कर रहा था, नकल मार रहा था और मेरा ध्यान उधर चला गया, मैं फेल हो गया। योर माइंड इज नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड यू आर ब्लेमिंग अदर्स। तो आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। आत्मा की नॉलेज मैंने आपको बताई। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। यू कैन concentrate your unstable mind at this point where the soul is situated, and you can connect that power with the power of the supreme soul or God. अभी आप बताइए परमात्मा क्या है? Have you seen by the eyes? Have you seen God? No. तो मैंने आपको बताया 4 युग
है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एंड कलयुग. एंड नाउ व्हिच युग इज गोइंग ऑन? कलयुग, घोर पापी कलयुग. जब साइंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? साइंस मनुष्य को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है. क्या प्रूफ है इसका? दिस एंटायर प्लैनेट इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन. हम विनाश की तरफ अग्रसर है. 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने पहला एटम बम इन्वेंट किया. 1945 में. आज 80 साल के बाद, आफ्टर 80 years, there are many countries in the world who possess atomic weapons, nuclear weapons, atom bombs. है या नहीं है? रशिया, अमेरिका, इनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है. नॉर्थ कोरिया, चाइना, सभी छोटे से छोटे कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है. तो मुझे बताइए, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, इससे क्या हमारी दुनिया और अच्छी बनने वाली है या सारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने वाला है? आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया व्लादिमीर पुतिन ने, या वो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग. सर फिरा है वो अपना जो टॉयलेट, जो टट्टी है ना, टॉयलेट भी साथ में लेके जाता है. रशिया में जाना है कोई भी कंट्री में, वो टॉयलेट का जो कमोड है वो भी साथ में लेके जाता है. और उसका जो लैट्रिन होता है उसको भी प्रिजर्व करके रखता है, किसी दुश्मन के हाथ में ना लग जाए. अगर वो पता चल गया तो उसके अंदर क्या क्या बीमारी है, क्या क्या डिसीजेस है, वो उसका एनालिसिस करके वो पता चल जाएगा कि ये प्रेसिडेंट में ये बीमारी है करके. So he is like a dictator. Vladimir Putin is also dictator. There are many dictators currently in the world. और उन्होंने अगर रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस किया तो एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होके ये सारी दुनिया एक सेकंड में, दिस एंटायर प्लैनेट विल बी डिस्ट्रॉयड. तो साइंस ने हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गया है. अभी कौन सा वर्ल्ड वॉर होने वाला है? थर्ड वर्ल्ड वॉर. सो थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे जाके हम खड़े हुए. और अगर एटॉमिक वेपन्स का यूज हो गया तो क्या होगा? सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, कलयुग का अंत की तरफ लेके जा रहा है. इसलिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बोला, "Chaos me, I am the god of death." उसने जब वो इन्वेंशन किया एटम बम का, वो खुद डर गया था. उसको लगा ये मल्टीपल चेन रिएक्शन होकर होकर ये चेन रिएक्शन से सारा ये प्लैनेट ही खत्म नहीं हो जाएगा. लेकिन सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो ही सिटीज डिस्ट्रॉय हो गए. पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन आज उस समय जो मेगावैट, जितने मेगावैट के एटम बॉम्ब्स बनाए थे, आज उससे 1000 गुना उससे पावरफुल एटॉमिक वेपन्स हर कंट्रीज के पास है. सो साइंस ने हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके गए. और उसकी वजह से क्या हुआ? साइंस के डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाने से अगर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो नई दुनिया भी स्थापन होनी चाहिए. न्यू वर्ल्ड शुड बी बिगन. और वो जो न्यू वर्ल्ड है, दैट इज कॉल्ड एज सतयुग, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन एज. सो साइंटिस्ट, they are creating such a destructive weapons, and God incarnates on the earth in an ordinary human being at the end of Kali-yuga, and he gives power of spiritualism, he gives knowledge of spiritualism, and he transforms Kali-yuga into Satyuga. तो दो पावर से, एक स्पिरिचुअलिज्म की पावर है जो साइलेंस की तरफ लेके जाती है. बिकॉज सतयुगा, in Satyuga there will be eternal peace and happiness. Now, is there temporary peace or happiness or permanent peace or happiness you are enjoying? आज हम temporary peace or happiness enjoy कर रहे हैं या permanent peace और happiness enjoy कर रहे हैं आज कलयुग में? temporary या permanent? permanent शांति, temporary. So Satyug is that yug where there is eternal peace and happiness.
तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो बात मैं बता रहा था कि जब ऐसा समय आता है कि सारी दुनिया में सारे डिस्ट्रक्शंस के साधन इकट्ठा हो जाते हैं, उस समय इस सृष्टि में सारी सृष्टि विनाश की तरफ अग्रसर होती है। साइंस की वजह से आपने बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्शन किए और बड़े बड़े डैम्स कंस्ट्रक्शन करने की वजह से आज टेक्टोनिक प्लेट्स जो है अर्थ के वो मूव हो रहे हैं और उसकी वजह से बड़े बड़े अर्थक्वेक्स भी हो रहे हैं, वोल्केनोस हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं। So now entire planet is on the verge of natural calamities. The second one is nuclear power, nuclear war, and we are also on the verge of Hindu-Muslim civil wars. आज spiritual power और silence power का अभ्यास नहीं होने की वजह से आज धर्म के पीछे झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम इनके बीच में जो झगड़े, जो दुश्मनी है, ये बढ़ती चली जा रही है रिलीजन के नाम पे, क्योंकि किसी को भी स्पिरिचुअल नॉलेज का पता नहीं है। तो ये जो समय है, एट द एंड ऑफ कलयुग, एट दैट टाइम गॉड शिव incarnates on the earth in an ordinary human being. This is spiritual message I am giving to you. आपने जो बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स है, भविष्यवेत्ता, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ प्रेडिक्टर नॉस्ट्राडेमस? आप गूगल में नाम डालिए नॉस्ट्राडेमस, उसकी बहुत प्रेडिक्शंस बहुत पॉपुलर है, उनकी कई सारी प्रेडिक्शंस सच साबित हुई है। उसके बाद किट, उसके बाद एंडरसन, जूरबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये अलग अलग प्रेडिक्शन से उन्होंने ये बात बोली है कि 21st सेंचुरी में देयर विल बी इनकार्नेशन ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, और एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो है वो ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा, ऐसे आध्यात्मिक क्रांति करेगा एंड ऐसी स्पिरिचुअल गैदरिंग तैयार करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द योगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ योग, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म। और उसके सामने अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, बड़ी बड़ी महासत्ताएं नतमस्तक हो जाएगी। भारत विल बिकम विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। बोलते हैं ना, झंडा तिरंगा झंडा जो है वो विश्व विजय कहलाएगा, विश्व में विजय पाएगा। तो ये जो समय है, अभी साइलेंस की पावर और स्पिरिचुअल पावर की सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो स्पिरिचुअल पावर देने के लिए भगवान स्वयं सृष्टि में अवतरित होते हैं, इनकारनेट होते हैं इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। कैसे पहचानेंगे? आज दुनिया में बहुत सारे स्पिरिचुअल अलग अलग सत्संग है, देयर आर मेनी बाबास, देयर आर मेनी आश्रम्स। हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट गॉड हैज इनकारनेटेड ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग? हाउ यू विल आइडेंटिफाई? कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हम सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है उसका नॉलेज। भगवान आके जो नॉलेज देता है दैट इज ओनली स्पिरिचुअल नॉलेज, और उस नॉलेज के आधार से हम पहचान सकते हैं, ये कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है। तो अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में वो स्पिरिचुअल टीचिंग्स स्वयं गॉड आके दे रहे हमको। प्रैक्टिकल जीवन में हम स्टूडेंट हैं, हम कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल जीवन में स्पिरिचुअल ये जो नॉलेज है अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो ये जो प्रेडिक्टर्स है, इन्होंने ये प्रेडिक्शंस की है कि 21st सेंचुरी का ये समय है। इवन मुस्लिम स्कॉलर्स है, क्रिश्चियन स्कॉलर्स है, वो इस बात को मानते हैं कि ये कयामत का समय है। अभी पैलेस्टाइन
कंट्रीज उसमें ज्वाइन हुए, तो उसमें मुस्लिम स्कॉलर्स बोल रहे हैं जब सारे मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टाइन के ऊपर जब वॉर होगा तो उस समय सारी दुनिया में कयामत आएगी। कयामत मीन्स डिस्ट्रक्शन। सो द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पीसलेसनेस एंड वायलेंस एंड आर्बिट्ररीनेस इन द वर्ल्ड इज ओनली वन। वो सॉल्यूशन है साइलेंस की पावर, स्पिरिचुअलिज्म। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।